Hello everyone. So in this video we will continue our discussion with the Haemophilus species. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे उन Haemophilus species की. Those are of veterinary importance. So simply there are 12 serotypes of Haemophilus parasuis, 15 serotypes of Haemophilus somnus and 9 serotypes of Haemophilus paragallinarum that have been identified and is of veterinary importance. ठीक है. देखो भाई, हम लोग बात करेंगे अब उन हीमोफिलस स्पीशीज की दैट आर ऑफ वेटनरी इंपॉर्टेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज की, देन देयर पर्टिकुलर होस्ट एंड देन द डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय देम. सबसे पहले बात करते हैं हीमोफिलस सोमनस की. ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है. अकॉर्डिंग टू द न्यू नोमेनक्लेचर इट इज नोन एज हिस्टोफिलस सोमनाई. इनके लिए होस्ट होते हैं हमारे कैटल्स एंड दे विल प्रोड्यूस द डिजीज कंडीशन लाइक सेप्टिसीमिया, थ्रोम्बोटिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, स्पोरेडिक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है. अब बात करेंगे हम हीमोफिलस सोमनस ऑफ ओवाइन स्ट्रेन एंड दिस इज आल्सो एन ओल्ड नोमेनक्लेचर. अनदर स्पीशीज इज हीमोफिलस एग्नाई एंड हिस्टोफिलस ओविस. ठीक है. इनके लिए होस्ट कौन होते हैं हमारे शीप्स एंड दे विल प्रोड्यूस द डिजीज कंडीशन लाइक एपिडाइडिमिस इन यंग रैम्स, वल्वाइटिस, mastitis and reduced reproductive performance in the case of eaves, septicemia, arthritis, meningitis and pneumonia in the case of lambs. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट स्पीशीज एंड इट इज Haemophilus parasuis. इसके लिए हमारे होस्ट होते हैं pigs and they will produce the condition like Glasser's disease and act as the secondary invader in the case of respiratory disease. ठीक है. The next species is Haemophilus paragallinarum. This is the old nomenclature and new nomenclature के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं एवी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम. ये अफेक्ट करते हैं चिकन्स को, फीजेंट्स को, टर्की को और गिनी फाउल को. एंड द डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय देम इज इन्फेक्शियस कोराइजा एंड रेस्पिरेटरी डिजीज. ठीक है. Now moving on, we will discuss about some of the differential characteristics of important Haemophilus species. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट हीमोफिलस स्पीशीज दैट विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ठीक है. एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द हीमोफिलस पैरास्विस. सिंपली दे विल नॉट रिक्वायर द फैक्टर एक्स फॉर द ग्रोथ, दे विल रिक्वायर फैक्टर बी फॉर द ग्रोथ. दे आर यूरियस नेगेटिव, they are hemolysis negative, they will show negative reaction on the camp, they are catalase positive and oxidase negative. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे हीमोफिलस पैरागैलिनेरम की. दे आल्सो डोंट रिक्वायर द फैक्टर एक्स फॉर द ग्रोथ, दे रिक्वायर फैक्टर वी फॉर द ग्रोथ. दे आर यूरियस नेगेटिव, दे आल्सो शो द नेगेटिव रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द hemolysis. They will show negative reaction on the camp. They are catalase negative and oxidase negative. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द Haemophilus somnus. They will not require the factor X and factor V for the growth. They are urease positive. They have variable hemolysis capacity. They will also show the negative camp reaction. They are catalase negative and oxidase positive. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the pathogenesis and the pathogenicity. So under this, we will discuss about the virulence factor and their role. So simply the capsule, the virulence is associated with the capsule formation. Capsule is polysaccharide in nature. Next one is the endotoxin production. In the case of the Haemophilus somnus, they can adhere firmly to the several host cell types including the endothelial and the vaginal epithelial cells. The organism is reported to cause the degeneration of the macrophages and it suppresses the neutrophil function. The certain outer membrane proteins which confer the virulency allow widespread dissemination of the bacteria in the host. The phase variation in the lipopolysaccharide antigen types may influence the survival and persistence in the host animal. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड द पैथोजेनेसिटी. एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायरुलेंस फैक्टर एंड देयर रोल. And the first virulence factor is the capsule. Simply the virulence is associated with the capsule formation and the capsule is polysaccharide in nature. देखो, ये जो हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर होते हैं, इनके चारों तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है which help them to set up the virulence in the host organism as well as ये जो कैप्सूल होती है polysaccharide in nature होती है. ठीक है. The next virulence factor is the endotoxin production. Moving on, the Haemophilus somnus can adhere firmly to the several host cell type including the endothelial and the vaginal epithelial cells.
The organism is reported to cause the degeneration of the macrophages and it suppresses the neutrophil function. बेसिकली ये जो हीमोफिलस सोमनस होता है ये होस्ट सेल के साथ जाके टाइटली अटैच हो जाता है, लाइक एंडोथेलियल सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाएगा, वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाएगा एंड विल परसिस्ट द इन्फेक्शन एज वेल एज। ये जो हीमोफिलस सोमनस होता है ये होस्ट सेल के मैक्रोफेजेस को डीजेनरेट करता है और उनके न्यूट्रोफिल फंक्शन को सप्रेस करता है, ठीक है। Moving on, the certain outer membrane protein which confer the virulence allow the widespread dissemination of the bacteria in the host. Hemophilus species के मेंबर के आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरुलेंस सेटअप करने में हेल्प करते हैं इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म एज वेल एज दे आल्सो हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया इन द होस्ट, ठीक है। The next virulence factor is the phase variation in the lipopolysaccharide antigen type may influence the survival and persistence in the host animal. Basically जो hemophilus species के मेंबर है ये फेज वेरिएशन करते हैं अपने लिपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन में, जिसके कारण वो काफी लंबे समय तक होस्ट ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। So now moving on, we will discuss about the diagnosis. So simply it is based on the clinical sign and the history. The specimen for the laboratory examination depend on the clinical condition and the type of lesion. Hemophilus species are fragile and neither refrigeration nor transport media maintain its viability. Ideally, the clinical specimen should be frozen in the dry ice and delivered to the laboratory within the 24 hours of the collection. सो देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस। सो सिंपली इट इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल साइन एंड हिस्ट्री। बेसिकली डायग्नोसिस के लिए आप किसी भी एनिमल के क्लिनिकल साइन और हिस्ट्री की स्टडी करोगे। आफ्टर दैट द स्पेसिमेन फॉर द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ द लीशंस। बेसिकली मान लो कि आपने किसी एनिमल को सस्पेक्ट करा कि यहाँ पे हीमोफिलस स्पीशीज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो सिंपली आप कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए क्या करोगे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड एनिमल से कोई सैंपल कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे, बट कलेक्शन के दौरान आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि which type of the clinical condition and type of lesion produced in that particular suspected animal, ठीक है। क्योंकि ये जो हीमोफिलस स्पीशीज होती हैं ये फ्रेजाइल होते हैं, इसलिए ना ही आप इनको रेफ्रिजरेट कर सकते, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट मीडिया अवेलेबल है फॉर मेंटेनिंग इट वायबिलिटी। इसलिए जो भी आप क्लिनिकल सैंपल्स और स्पेसिमेन किसी भी सस्पेक्टेड एनिमल से कलेक्ट करोगे फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस और द एग्जामिनेशन, आपको उन्हें फ्रीज करना होगा इन द ड्राई आइस एंड यू हैव टू डिलीवर इट टू द लेबोरेटरी विद इन द 24 आवर्स ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। Moving on, you can use either chocolate agar or blood agar inoculated with the streak of the Staphylococcus aureus incubated under 5 to 10% of carbon dioxide at 37 degrees Celsius for 2 to 3 days in a moist atmosphere is used for the isolation. Identification criteria for the isolates involve the small dewdrop-like colonies after 1 to 2 days, enhancement of growth by CO2, the requirement of X and V growth factors and the biochemical profile. सो देखो भाई सिंपली मान लो कि आपने किसी एनिमल को सस्पेक्ट करा कि यहाँ पे हीमोफिलस स्पीशीज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप क्या करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए जाओगे, तो सबसे पहले आपको बैक्टीरिया को आइसोलेट करना होगा। सो सिंपली फॉर द आइसोलेशन यू कैन ग्रो इट ऑन द चॉकलेट अगार or the blood agar, then you have to inoculate with a streak of the Staphylococcus aureus for the growth factors, then you have to incubate it at 37 degrees Celsius for 2 to 3 days under the 5 to 10% of CO2 एटमोस्फेयर, ठीक है। अब आपने क्या करा, बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया, कल्चर कर लिया, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप जज करोगे कि क्या वहां पे स्मॉल ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप लाइक कॉलोनीज का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आफ्टर दैट यू विल चेक देयर डिपेंडेंसी ऑन CO2 फॉर देयर ग्रोथ, देन यू विल चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर लाइक X एंड V, फिर आप जाओगे बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग के लिए, ठीक है। So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.